Good morning, students of class 9. Today we are going to start our very new chapter, chapter number 12, Heron's Formula of our NCERT book. So before beginning our chapter, I am going to start with some basic concept that we are going to use in this chapter, or you can say some key concepts. So students, Heron's formula, sometimes called Hero's formula, was given by a great mathematician named Heroes, and he gave the formula to formulate or to find the area of a triangle when all the three sides of the triangle are known. So before Heron's formula, we were dealing with the area of triangle by using the formula area is equal to half into base into height, and for this we need base and a height. That means we need a triangle having a right angle. Somewhere it must have a right angle. So basically just to find the area of a triangle with all the three sides, we will use a new formula that is called the Heron's formula. So for the Heron's formula, when a triangle have side A, B and C, then we can find semi-perimeter of a triangle. So as you know, the perimeter of triangle is basically the sum of all sides. So if the sides are A, B and C, therefore the perimeter will be A plus B plus C. This is the perimeter, students, and we are going to find the semi perimeter. अगर हम S find कर रहे हैं, semi perimeter find कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? perimeter का half. तो basically S जो है वो क्या है students? perimeter का half है, that is called semi perimeter. Now why we are finding semi perimeter? हमें तो area find करना है. So basically Heron's formula के according हम लोग क्या use करते हैं? हम लोग semi perimeter का use करते हैं to formulate the area of the triangle. So basically Heron's formula जो actually है वो ये है that area of triangle is equal to under root S, S minus A, S minus B, S minus C square units, where S is depicting semi perimeter, A is the side of a triangle, B is also a side of a triangle, and C is also a side of triangle. So according to Heron's formula, area of the triangle is equal to under root S, S minus A, S minus B, S minus C, and square units is basically the unit of the area. Now students, talking about the equilateral triangle, when all the sides are equal, then in that case A is equal to B is equal to C, isn't? So we are going to place the value of B and C as A in this formula. And when you find the area of equilateral triangle using Heron's formula, you will get it as under root 3 upon 4 A square units. So किस तरीके से स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आया है, हम इसे क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं. जस्ट अभी आपको ये जानना है कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर यूनिट्स. ओके, चलिए अब हम अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट कर देते हैं. एंड स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू कि आपको जैसे कि पता है कि सीबीएसई ने कोर्स आपका रिड्यूस किया है, तो उस रिडक्शन में स्टूडेंट्स हम लोग के 12 चैप्टर से एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला ऑन क्वाड्रिलेटरल, दैट इज एक्सरसाइज 12.2 कैंसिल हो गई है. सो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू जस्ट डू आवर एक्सरसाइज 12.1. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1. सो हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 1, a traffic signal board indicating school ahead in an equilateral triangle with side A. तो बेसिकली एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसमें कि लिखा हुआ है स्कूल अहेड, और ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसकी साइड कितनी हम लोग की ए हम लोग की साइड है. सो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि हम फाइंड करने वाले हैं कि किस तरीके से हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाला है, तो हम लोग इसके थ्रू हम लोग निकालने वाले हैं. सो फाइंड द एरिया ऑफ अ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला. तो बेसिकली हम लोग को हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करके अपने ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है.
One more thing is given to us that if its perimeter is 180 centimeter, अगर perimeter 180 centimeter है, then what will be its area of the signal board. तो उस केस में perimeter कितना होगा. That means कि पहले तो हम लोग को simple एक formula find करना है जिसकी side A है, उस equilateral triangle का आपको area find कर देना है. After that इन्होंने आपको थोड़ी सी information ये दे दी है कि perimeter कितना है इसका 180 सेंटीमीटर. तो हमें इसे न्यूमेरिकल वैल्यू भी देनी होगी. जो भी हम लोग का एरिया का फॉर्मूला बन के आएगा उसमें हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे. चलिए देख लेते हैं. आपको पता है कि ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड की साइड जो है वो कितने की है, ए. नाउ पेरीमीटर अगर हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स, आपको पता है पेरीमीटर बेसिकली क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, और यू कैन से पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3 into a. सो बेसिकली हम लोग का पेरीमीटर कितना आ गया, 3 into a. नाउ स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो हम लोग का सेमी पेरीमीटर था, वो सेमी पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर का हाफ. तो कितना आ गया हम लोग का स्टूडेंट्स सेमी पेरीमीटर, 3a/2 या 3/2a, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि दैट s इज इक्वल टू 3/2a. तो हम लोगों ने s फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स. और आपको पता है बाय हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, √s, s - a, s - b, s - c. अब हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज पुट करेंगे स्टूडेंट्स. s के प्लेस में हम क्या पुट करेंगे, 3/2a. एंड अगेन जब आप यहाँ पे 3/2a प्लेस करेंगे, ये हम लोग की s की वैल्यू है. देन अगेन ब्रैकेट में हम लोग को s - a की वैल्यू पुट करनी है. तो s की वैल्यू तो अगेन स्टूडेंट्स 3/2a है एंड a की वैल्यू तो a ही होती है. नेक्स्ट अगेन s - b के केस में भी s की वैल्यू 3/2a है, तो वो हमने पुट कर दी. b की वैल्यू हमने a बोली है बिकॉज आपको पता है अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड्स क्या होने वाली है, आपस में इक्वल. तो 3/2a - a एंड देन अगेन 3/2a - a बिकॉज c की वैल्यू भी a के इक्वल है. तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग. आपको पता है कि 3/2a यहाँ पे सेम रहेगा. बात करेगा 3/2a - a की, तो जब हम 3/2a - a को स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे आप 1 लिखेंगे एंड यहाँ पे हम लोग का 2 एलसीएम में चला जाएगा. ठीक है, तो ये आ जाएगा 3a - का 2a एंड 3a - 2a स्टूडेंट्स क्या होता है a/2. तो बेसिकली जो हम लोग की सेकेंड टर्म आएगी वो आएगी हम लोग की a/2. सो 3/2a - a की वैल्यू आई है a/2. तो वो जस्ट हमने यहाँ पे पुट कर दी. सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ टर्म के लिए भी हमने a/2 प्लेस कर दिया है. अब बात करते हैं रूट सॉल्व करने की स्टूडेंट्स. तो आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है. जैसे कि अगर हम लोग के स्क्वायर रूट के अंदर 3 into 3 लिखा होता था तो हम इसे स्क्वायर रूट के बाहर निकाल के सिंपल 1/3 लिख लेते थे. तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी यूज़ करने वाले हैं कि जैसे कि हम लोग का a/2 एंड यहाँ भी 3/2a में भी स्टूडेंट्स क्या है, हम लोग का a/2 है. तो बेसिकली a/2 हम लोग का कितने बार आ गया है, 4 टाइम्स. तो हम क्या करेंगे, अपने a/2 को 2 टाइम्स हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के आउटसाइड लिख देंगे. एंड √3 ऑलरेडी हम लोग का अंडर रूट में ही रहेगा, मतलब 3 विल बी इन द रूट. सो बेसिकली a² की वैल्यू, a/2 का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाती है, √3 a²/2 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 4. तो कितना आ गया हम लोग का एरिया ऑफ द ट्राइंगल, √3/4 a². ओके, चलिए तो ये अभी हम लोग का सिर्फ फॉर्मूला आया है. मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम लोग को पेरीमीटर गिवन है, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है. अब हमें इसकी मैथमेटिकल वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम लोग अपने एरिया की वैल्यू फाइंड कर ली, √3/4 a². नेक्स्ट जो हम लोग का पेरीमीटर ऑफ अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड हमें गिवन है 180 सेंटीमीटर. जैसे कि हमने फाइंड किया था इसमें कि जो हम लोग की साइड थी, ठीक है, अगर हम लोग का s गिवन है कितना स्टूडेंट्स, 3/2a है ना. एंड आपको पता है कि जो हम लोग का पेरीमीटर होता है कंप्लीट, वो कितना होता है, a+a+a है ना, यानी कि 3a हम लोग का पेरीमीटर है. एंड आपको पता है ये 3a किसके इक्विवेलेंट है, हम लोग को गिवन है 180. तो ये हमने 180 रख दिया. 180 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो a की वैल्यू स्टूडेंट्स निकल के आ जाएगी 180/3. एंड बेसिकली जब आप इसे कैंसिल करेंगे यू विल गेट 60. सो स्टूडेंट a की वैल्यू हम लोग की कितनी आ गई है, 60. अब हमने a की वैल्यू फाइंड कर लिया. हमें पता है कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया था उसमें क्या था, उसमें था √3/4 a² एंड a की वैल्यू अभी हमने 60 फाइंड की है स्टूडेंट्स.
तो ये आ जाएगा √3/4 60 का स्क्वायर, दैट मीन्स 3600, है ना। एंड 4 से 3600 कट रहा है कितने टाइम्स, 900 टाइम। तो बेसिकली हम लोग का जो आंसर बन गया स्टूडेंट्स वो क्या बन गया है हम लोग का, 900/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल गया है, जिसकी साइड हम लोग की ए थी एंड पेरीमीटर हम लोग को 180 सेंटीमीटर गिवन था, तो उसमें हमने वैल्यू पुट करके एक मैथमेटिकल वैल्यू भी इसके लिए फाइंड की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द ट्रायंगुलर साइड walls of a flyover have been used for advertisement. The side of a walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yield an earning of rupees 5000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? तो बेसिकली एक फ्लाईओवर है जिसकी जो वॉल है वो ट्रायंगुलर शेप में है और आपको साइड्स आपको गिवन है। अब नेक्स्ट उसमें बोला गया है कि जो एडवर्टाइजमेंट एक क्या हो रखा है, एक द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। हर ईयर में 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर की अर्निंग हो रही है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट से। और एक कंपनी ने हायर की है वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, तो 3 महीने के लिए उन्होंने उस कंपनी ने हायर की है वॉल को, तो कितना रेंट उसे पे करना पड़ेगा उन 3 मंथ्स में वो हमें फाइंड करना है। तो बेसिकली क्योंकि आपको दिख रहा है कि मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग है, तो हम लोग को एरिया फाइंड करना पड़ेगा अपनी वॉल का। तो एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास 3 साइड्स हैं उसकी, ए बी एंड सी। ए है हम लोग की लेट कर लेते हैं 122 मीटर, बी है 120 एंड सी है 22 मीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया फाइंड करने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला से हम लोग को क्या फाइंड करना पड़ता है, सेमी पेरीमीटर। एंड सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू a + b + c अपॉन 2। दैट मीन्स वैल्यू आप पुट करेंगे ए बी एंड सी के एंड यू विल गेट 132 मीटर। ये सेमी पेरीमीटर आ गया है हम लोग का। अब हम एरिया फाइंड कर सकते हैं इजीली। सो एरिया हम लोग का अकॉर्डिंग टू द हीरोन्स फॉर्मूला होता है √S, S - A, S - B, S - C। तो जब हम लोगों ने स्टूडेंट्स वैल्यू रखी अपनी S की, क्योंकि S हमने फाइंड किया अभी 132, S हमने फाइंड किया 132 प्रीवियसली, तो अब हम अपनी फॉर्मूले में S की वैल्यू 132 प्लेस करेंगे। अगेन 132 - 122, देन 132 - 120 क्योंकि B की वैल्यू 120 है, एंड देन 132 - 22। एंड जब आप इनको सॉल्व करेंगे 132 - 122 यू विल गेट 10, 132 विल रिमेन सेम, एंड similarly 132 - 20 will give you 12 and 132 - 22 will give you 110। एंड जब आप इनके स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे यू विल गेट 1320 मीटर स्क्वायर। सो बेसिकली हम लोग का एरिया आ गया ट्रायंगुलर साइड वॉल का कितना, 1320 मीटर स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं कितना रेंट पे करना पड़ेगा। तो आपको ऑलरेडी उसमें इंस्ट्रक्ट किया है कि 1 मीटर स्क्वायर की 1 ईयर के लिए कितना रेंट है, ₹5000 का। तो हम लोग को तो 3 मंथ्स का निकालना है, तो पहले तो 1 ईयर का गिवन है, हम लोग पहले 1 मंथ का निकाल लेते हैं कितना रेंट होने वाला है। इट विल बी 5000/12। अब बात करते हैं, बिकॉज इसमें 1 मीटर स्क्वायर की बात हो रही है 1 मंथ की, तो हमें तो बात करनी है 1320 मीटर स्क्वायर की, बिकॉज एरिया कितना है 1320 मीटर स्क्वायर। तो 1320 मीटर स्क्वायर के लिए वो भी 3 मंथ्स की बात करें तो हम इस वैल्यू में पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे 1320 का, एंड देन हम लोग उसमें 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे फॉर फाइंडिंग 3 मंथ्स। सो बेसिकली जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स 5000/12 इंटू 1320 इंटू 3 यू विल गेट 16,50,000। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा ₹16,50,000। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। So question number 3 is, there is a slide in a park. One of the side wall has been painted in some color with the message keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter, 6 meter, find the area painted in the color. So clear है students, हम लोग को क्या find करना है, area painted in color, that means the triangular wall का जो हम लोग का area है वो find करना है with side 15 meter, 11 meter and 6 meter. अगेन हम लोग के लिए ए बी एन सी तीनों वैल्यूज़ गिवन है। हम लोग अपने पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, देन आफ्टर यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला हम लोग इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। देन स्टूडेंट्स यू विल गेट 20√2 मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली एरिया पेंटेड इन कलर विल बी 20√2 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 4।
Find the area of a triangle, two sides of which are 18 cm and 10 cm and the perimeter is 42 cm. आपको आपके ट्राइंगल की स्टूडेंट्स टू साइड्स गिवन है. सपोज कीजिए ये साइड 18 सेंटीमीटर की है, ये वाले 10 सेंटीमीटर की है, बट क्योंकि हम लोग को एरिया फाइंड करना है तो हमें तो थर्ड साइड भी चाहिए. तो हम लोग किसे यूज़ करने वाले हैं, हम लोग पेरीमीटर का यूज़ करने वाले हैं टू फाइंड द थर्ड साइड. सो बेसिकली आपको पता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 42 सेंटीमीटर गिवन है एंड हमें ये भी पता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड दैट इज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 42. हम a एंड b की वैल्यूज में पुट करेंगे 18 प्लस 10 प्लस c इज इक्वल टू 42 बिकॉज हम लोग को c फाइंड करना है एंड c विल बी इक्वल टू 42 माइनस 28 दैट इज 14. अब हम लोग का c की वैल्यू भी आ गई स्टूडेंट्स. अब हम इजीली सेमी पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 एंड a प्लस बी प्लस सी दैट मीन्स पेरीमीटर अपॉन 2 यानी कि 42 अपॉन 2 एंड 42 अपॉन 2 की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स 21. तो हम लोग की पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर की वैल्यू 21 आ गई है. अब इस 21 की वैल्यू एंड a b एंड c की वैल्यू हम अपने हीरोज फॉर्मूला के एरिया ऑफ ट्राइंगल में पुट करने वाले हैं. तो जब आप इसमें आप पुट करेंगे स्टूडेंट्स यू विल गेट इक्वेशन लाइक 21 in bracket 21 minus 18 in bracket 21 minus 10 in bracket 21 minus 14 and when you will solve you will get the value something like that and जब आप इसे भी solve करेंगे you will get the value in root that is 21 under root 11 centimeter square. तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो हम लोग का आ गया है वो है 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. So question number 5 is sides of a triangle are in the ratio of 12:17:25. So we have given sides in the ratio and आपको पता है अगर हम लोग को रेशियो में गिवन होता है तो हम लोग इन टर्म्स ऑफ x में उसको लेट कर लेते हैं. इसके अलावा हम लोग को गिवन है पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड द एरिया अगेन. तो हम लोग लेट कर लेंगे साइड्स जो है वो 12x 17x एंड 25x हम लोग की साइड्स हो जाएंगी. अब हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे. पेरीमीटर हम लोग के लिए पेरीमीटर हम लोग को गिवन है 540 सेंटीमीटर. तो हम लोग क्या करेंगे अपने a प्लस बी प्लस सी जो कि पेरीमीटर ही होता है उसके इक्विवेलेंट में क्या रख देंगे अपने पेरीमीटर की वैल्यू दैट इज 540. तो जब आप अपनी a b एंड c की वैल्यू पुट करेंगे यू विल गेट 54x. on adding them you will get 54x and 54x is equal to 540 that means x is equal to 540 upon 54 that is 10. तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स निकल के आ गई है 10. अब हम अपनी a b एंड c की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज a की वैल्यू हम लोगों ने लेट करी है 12x दैट मीन्स 12 मल्टीप्लाई बाय 10. देन b की वैल्यू है 17x दैट इज 17 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड c की वैल्यू है 25x दैट इज 25 मल्टीप्लाई बाय 10. And that's how we got A as 120 centimeter, B as 170 centimeter and C as 250 centimeter. And now we can put the value in the semi-perimeter formula. S is equal to A plus B plus C upon 2, or you can directly find it by simply dividing 540 by 2 which was our perimeter and you will get S as 270. Now putting the value of S as 270, A as 120 and B as 170 and C as 250 centimeter, you will get the value of area of triangle as 9000 centimeter square. Now we are moving to the last question of this exercise student, question number 6. So question number 6 is an isosceles triangle has a perimeter 30 centimeter. Again हम लोग को perimeter given है and each of the equal side is 12 centimeter. और equal side हम लोग को given है 12 centimeter की. That means अगर ये वाले 12 है तो ये भी हम लोग की 12 होगी. Find the area. तो अगेन स्टूडेंट्स हम लोग को इसमें थर्ड साइड फाइंड करनी पड़ेगी यूजिंग द पेरीमीटर. तो अगेन हम लोग क्या करेंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30 बिकॉज 30 हम लोग का पेरीमीटर है एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b एज 12 बिकॉज दोनों साइड इक्वल है तो 12 प्लस c इज इक्वल टू 30 एंड c विल बी इक्वल टू 30 माइनस 24 दैट विल बी इक्वल टू 6. तो हम लोग की c की वैल्यू आ गई है 6. नाउ हम लोग फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स s सेमी पेरीमीटर की वैल्यू बाय सिंपली डिवाइडिंग 30 विच वॉज अवर पेरीमीटर बाय 2. हम लोग 30 को 2 से डिवाइड करके 15 वैल्यू लेके आ जाएंगे s की यानी कि सेमी पेरीमीटर की. नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c in the formula of area of triangle and we can calculate easily student the area of the triangle as 9 under root 15 centimeter square.
So this is our answer, students. We now have completed our chapter number 12, because we don't have to do 12.2 as it has been deleted by the CBSE. So that's all for today's students. Thank you so much.